function fx and which is continuous, and we have to find the area of the function and enclosed by the function and x-axis between the ordinate x equal to a and x equal to b. तो इस बात को हम लोग ग्राफ पर भी देख सकते हैं कि अगर हम ए बी इंटरवल को n सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ में डिवाइड करते हैं, मान लो सपोज हर एक इंटरवल की विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो हर एक इंटरवल की विड्थ अगर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हुई, तो डेल्टा एक्स विल बिकम total length of interval is b minus a and you have divided into n sub intervals, so it is b minus a upon n. तो एक इंटरवल की जो विड्थ होगी, ठीक है, वो b minus a by n होगी. So as you can see on the diagram that x1 is the initial ordinate of first sub interval and so x2 x3 and so forth. तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई b minus a by n. अब अगर हमें हर इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल फ्रेम करके और उस रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड किया जाए, तो दिस एंटायर एरिया enclosed by the curve will be the area of these n rectangles. First rectangle x1 से x2 and second rectangle is from x2 to x3 and similarly the rth rectangle is from xr to xr plus 1 and हर एक rectangle के corresponding we can define two areas, two summations. The rth rectangle का जो area है वो क्या आएगा, देखो तो f xr plus 1 is the height of the rectangle and delta x is the width if I consider the post ordinate. ठीक है, इसको अगर आप इस तरह से देखो कि ये rth स्ट्राइप है, rth स्ट्राइप है, तो xr और xr प्लस 1 इसके इनिशियल और फाइनल एब्सिसा हो गए, तो xr पर हाइट क्या होगी, f xr एंड xr प्लस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हाइट हो जाएगा f xr प्लस 1 and therefore we can create two rectangles, one rectangle whose height is xr and width is delta x. तो ये area of the rectangle हो गई, ठीक है, and corresponding to the upper ordinate xr f of xr plus 1 we can have another rectangle and its area is shaded by say this red shade and actual area enclosed by the function and x-axis for this subinterval will lie between the area of the upper rectangle, means larger rectangle, minus area of the smaller rectangle. So we can say that dA, actual area dA is f of xr plus 1 times delta x. It is less than this and it is greater than f of xr into delta x. ये तो सबको क्लियर हो रहा है कि छोटे रेक्टेंगल से एक्चुअल एरिया बड़ी है और बड़े रेक्टेंगल से एक्चुअल एरिया छोटी है. तो अगर हम छोटे रेक्टेंगल्स, अच्छा, corresponding to each sub interval we can define these two kind of rectangles, upper as well as lower. तो इसको अपर रेक्टेंगल बोल रहे हैं, ये हर एक सब इंटरवल पे डिफाइन होगा, और इसी तरह से लोअर रेक्टेंगल भी हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर ईच सब इंटरवल. आई होप यहां तक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है. एंड देयरफॉर if we add the all area of the lower rectangles we get an area which is less than the actual area, and if we add the all areas of the upper rectangle we get the area like upper rectangle की area देखो f xr plus 1 delta x क्या है, f of a plus r b minus, because देखो
तो जो rth रेक्टेंगल है इसके पहले कितनी स्ट्राइप्स हैं एक्स आर प्लस 1 के पहले? r स्ट्राइप्स है। एक स्ट्राइप की विड्थ क्या है? b माइनस ए बाई एन, एंड देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम a to xr plus 1 is a plus r b minus a by n। तो xr plus 1 की वैल्यू हो जाएगी a plus r b minus a by n, और विड्थ क्या हो गई? b minus a by n। तो ये हो गया, क्या हुआ? ये rth स्ट्राइप का एरिया। समेशन ऑफ एरिया ऑफ दीज n रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स, अगर सारी के सारी आप अपर रेक्टेंगल लेते हो, है ना, तो समेशन ऑफ द एरिया ऑफ दीज n रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स विल बी इक्वल टू सिग्मा f of xr plus 1 into delta x, and let's replace the value in terms of r and n। ये सारे स्ट्राइप की एरिया है, तो इट इज इक्वल टू f of a plus r times b minus a upon n total multiplied by b minus a upon n, r varies 1 to n। तो ये जो एरिया मिल रही है आपको, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, ये बेसिकली सारे अपर रेक्टेंगल्स की एरिया है। इसको अपर सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपर सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल अपर रेक्टेंगल्स। क्लियर है? अपर सम समझ में आ गया? एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग लोअर सम भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। लोअर सम भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लोअर सम क्या होगा? Lower sum will be the summation of areas of all lower rectangles. Summation of areas of all lower rectangles. सपोज इसको स्मॉल एस बोलते हैं, तो अपर सम को अगर हम कैपिटल एस बोल रहे हैं, लोअर सम को स्मॉल एस बोल रहे हैं, तो वी कैन डेफिनेटली से दैट द इंटीग्रल सम, जिसको हम एक्चुअल एरिया बोलते हैं, a to b fx dx, this will be always less than upper sum and greater than lower sum। ठीक है, तो लोअर सम को स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूं मैं, और अपर सम को कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप में से हर एक को बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है, लोअर सम को भी एग्जैक्टली इसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे कैसे? लोअर सम के लिए हम इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ ईच स्ट्राइप कंसीडर करेंगे। लोअर सम के लिए हम इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ ईच स्ट्राइप कंसीडर करेंगे। तो rth स्ट्राइप के लिए हम क्या करेंगे? r की वैल्यू जैसे मान लिया हम 0 कर दें, है ना, r को 0 करें, तो fx1 is the height and delta x is the width। r की वैल्यू 1 कर दिया, तो fx2 is the height and delta x is the width, and so on। r के कॉरस्पॉन्डिंग fxr r-1 पर rth आ जाएगा, राइट। तो r-1 पुट करेंगे, x की r की जगह r-1 पुट करेंगे, तो fxr is the height and delta x is the width। तो ये हो जाएगा तुम्हारा f of a plus r into b minus a by n। But now r will vary from 0 to n-1। आप खुद देख लो, r 0 पुट करोगे तो fa इंटू बी माइनस ए बाई एन, इनिशियल ऑर्डिनेट आया। r को 1 पुट करोगे तो fa प्लस r को 1 fa प्लस बी माइनस ए बाई एन, a प्लस डेल्टा एक्स इंटू बी माइनस ए बाई एन, a प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू बी माइनस ए बाई एन। तो ये लोअर रेक्टेंगल्स के एरिया को डिनोट करेगा। Now we can say that as number of stripe n increases to infinity, then the upper sum converges to the area as well as the lower sum also converges to the area। तो upper sum आप क्लियर देख रहे हो कि जैसे जैसे आप n के बजाय 2n स्ट्राइप्स कर दो, 3n स्ट्राइप्स कर दो, और n की नंबर ऑफ स्ट्राइप्स को इंक्रीज करते हुए इन्फिनिटी ले जाओ, तो ये रेक्टेंगल्स का सम एक्चुअल एरिया के इक्वल हो जाएगा। ये बात को भी हम डिटेल कर सकते हैं कि इफ लिमिट ऑफ n अप्रोचेस इंफिनिटी, सिग्मा f ऑफ a प्लस r टाइम्स b माइनस a ओवर n मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a बाई n, यही तो समेशन था। और अगर r की वैल्यू 1 से लेके n है तो ये हम अपर सम बोलते हैं।
और ये अपर सम की एरिया, अपर सम की जो वैल्यू आएगी वो a to b fx dx के इक्वल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है पूरी तरह से? इसको इलैबोरेट करने के लिए हम फर्दर इस एक पर्टिकुलर स्ट्राइप को लेकर के हम फर्दर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये आप जानना चाह रहे हो कि हाउ डज दिस समेशन कन्वर्जेस विद द एक्चुअल एरिया, सो वी कैन डिटेल इट लाइक कंसिडरिंग वन स्ट्राइप, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइप ले लेते हैं और उसी स्ट्राइप्स को सब डिवाइड करते हैं। मान लो kth स्ट्राइप की एरिया की बात कर रहे हैं, डेल्टा ए के, तो क्या है एफ एक्स के स्टार उसकी हाइट हो गई और डेल्टा एक्स उसकी विड्थ हो गई। और फिर इसको हम सब डिवाइड करें अगर दो इंटरवल में, मान लो ये पर्टिकुलर स्ट्राइप के एरिया था, जिसको हम अगर सब डिवाइड कर दें, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे देखो कि अगर मान लो ये हमारी kth स्ट्राइप है, ठीक है, और इस kth स्ट्राइप का एरिया आप अपर सम भी हम डिफाइन कर चुके हैं, अपर रेक्टेंगल भी डिफाइन कर चुके हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हो गया अपर रेक्टेंगल, है ना। और इनिशियल ऑर्डिनेट को ले लिया जाए हाइट, तो ये लोअर रेक्टेंगल भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और आपको दिख रहा है कि जो एक्चुअल एरिया है वो इस लोअर रेक्टेंगल से बड़ी है, अपर से छोटी है, बट अगर हम इसी स्ट्राइप को सब डिवाइड करें दो इक्वल विड्थ की स्ट्राइप्स में, ठीक है, देयरफॉर दो स्ट्राइप बना दिया अगर हमने, तो लोअर सब में एक छोटा रेक्टेंगल ये बन गया हाफ विड्थ का, और एक छोटा रेक्टेंगल सेकेंड वाले स्ट्राइप का इनिशियल ऑर्डिनेट को लेकर के ये बन गया, ठीक है जी। ये दो रेक्टेंगल के एरिया को सम करेंगे तो लोअर सम आ जाएगा। अब जरा देखो ये लोअर सम में क्या हुआ कि पहले सिंगल स्ट्राइप के कॉरस्पॉन्डिंग जो लोअर सम था वो तो इतना ही था ना, ये जो मैं शेड करके दिखा रहा हूं येलो कलर से, ये सिंगल स्ट्राइप के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया यही थी, सिर्फ दिस मच। बट द मोमेंट वी have divided this stripe into two stripes, तो क्या हुआ, लोअर सम में कुछ एरिया एडिशनल आ गई। और ये भी देख सकते हो कि अपर सम क्या था, सिंगल स्ट्राइप के केस में अपर सम ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया था, है ना। और हम बोल रहे थे क्या, हम बोल रहे थे कि जो एक्चुअल एरिया है वो इन दोनों के बीच लाई कर रही है, यही तो था सिंगल स्ट्राइप का केस। फिर हमने क्या किया, हमने सब डिवाइड किया, दो इक्वल विड्थ के एरिया में सब डिवाइड किया, तो ये एरिया एडिशन हुआ, लोअर सम इंक्रीज कर गया। आप इस बात को और ऑब्जर्व कर सकते हो, द मोमेंट वी हैव डिवाइडेड द स्ट्राइप इनटू टू स्ट्राइप्स ऑफ इक्वल विड्थ, देन लोअर सम इंक्रीज्ड बाय दिस मच अमाउंट जो हमने शेड किया। तो इसी तरह से जो अपर सम है, अपर सम में भी तो दो अपर रेक्टेंगल बन जाएंगे, ये देखो, तो अपर सम क्या हुआ, अपर सम में दो रेक्टेंगल का सम करके अगर करो तो ये वाली एरिया है ना, एक ये वाला एरिया हो गया। अगर मैं अपर सम को अगर डिफाइन करूं तो अपर सम यही हुआ ना अब आपका फाइनली, ये पहली स्ट्राइप की एरिया और ये दूसरी स्ट्राइप की एरिया हो गई, तो ये दोनों स्ट्राइप का सम किया तो जो इनिशियल सिंगल स्ट्राइप के फॉर्म में जो था उससे कम हो गया, तो दिस मच एरिया हैज बीन diminished from the upper sum. So what we observe that by dividing a stripe into two, the lower sum is decreasing, upper sum is decreasing, whereas the lower sum is increasing. इसी तरह से अगर हम मान लो कि फिर से सब डिवाइड करते हैं दो दो में हर एक को,
तो आप देखोगे फिर से अपर सम में डिडक्शन होगा, अपर सम का रिडक्शन होगा और लोअर सम का इंडक्शन। लोअर सम देखो अब 4 स्ट्राइप हो गई, तो 4 स्ट्राइप में लोअर सम के अंदर में ये एरिया एडिशनल आ गई, देखो ये एडिशनल एरिया आ गई, लोअर सम और बड़ा हो गया, है ना। 2 स्ट्राइप, एक के करस्पॉन्डिंग 2 स्ट्राइप में किया तो इंक्रीज हुआ, अब 2 के करस्पॉन्डिंग जब हमने 4 स्ट्राइप किया तो फर्दर लोअर सम में इतना और कवर हो गया। व्हाट हैपेंड टू द अपर सम? व्हाट हैपेंड टू द अपर सम? तो आप देखो अपर सम में ये एक रेक्टेंगल हुआ, ये दूसरा रेक्टेंगल हुआ, ये तीसरा रेक्टेंगल हुआ और ये चौथा रेक्टेंगल हुआ। तो अपर सम में और रिडक्शन हो गया। अपर सम में देखो ये पोर्शन जो हम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जितना पोर्शन मैंने शेड किया रेड कलर से अभी, ये अपर सम का फर्दर रिडक्शन हुआ। सो इट इज easy to observe, it is easy to observe that by subdividing the upper sum reduces whereas the lower sum increases and ultimately both converge to the integral sum। तो चाहे आप लोअर समेशन से इंटीग्रेट करो, समेशन लो, लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम करो, या अपर सम के कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम करो, वो लिमिट की वैल्यू एक्चुअली इंटीग्रल सम के इक्वल आ जाएगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई? आ रही ना बात समझ में कि ये इंक्रीज किया तो लोअर सम कैसे इंक्रीज कर रहा है, अपर सम कैसे डिक्रीज कर रहा है, यही बात सबको समझनी है। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहां से हमें लिमिट को इवेल्युएट करने का एक मेथड मिल गया। पहला क्या कि एक्सप्रेस टू इवेल्युएट एनी लिमिट ऑफ infinite summation in the form of integral. To evaluate a limit of infinite sum, express this limit as function of a plus r b minus a by n into b minus a by n. Now b minus a by n जो कि डेल्टा x था, जब n अप्रोचेज इंफिनिटी होगा तो वो dx हो जाएगा। a प्लस आर बी माइनस ए बाई एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर x हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो तो इसमें जो ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट है फंक्शन f के अहेड पे देखो तो वो x हो जाएगा, b माइनस ए बाई एन dx हो जाएगा, और ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन का सिंबल जो है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो x मिनिमम क्या है? तो x वेरी क्यों कर रहा है? r की वजह से। तो x मिनिमम कब होगा? जब r मिनिमम होगा। ऐसे x मैक्स कब होगा? जब r मैक्स होगा। तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी? a कैसे मिलेगी? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r मिनिमम पुट करके। और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल क्या होगी? b कैसे मिलेगी? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करो r मैक्स के लिए। r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? n। r की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो r मिनिमम को करो तो 0, तो a आ गया। और ये जो इंटीग्रल का साइन है ये किसको डिनोट कर रहा है? इनफिनाइट सम का लिमिट, बिकॉज इनफिनाइट नंबर हो गया तो आपको मिल गया कंटिन्यूटी हो गई, तो कॉन्टिन्यूअस सम। अब किसी भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ gn को अगर हमें इवेल्युएट करना है तो gn को सबसे पहले हमें इनफिनाइट सम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, and then using the definite integral we can evaluate following this step 1. Express the function gn in terms of infinite sum using sigma notation. पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कि a प्लस आर टाइम्स b माइनस ए बाई एन को रिप्लेस करेंगे। r टाइम्स b माइनस ए बाई एन प्लस a को x से डिनोट करेंगे, b माइनस ए बाई एन को dx से रिप्लेस करेंगे। और तीसरे स्टेप में
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन जो है ये डिस्क्रीट समेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कंटिन्यूअस सम में, मतलब इंटीग्रल में। अल्फा टू बीटा, अल्फा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x की वैल्यू r इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, जिसको हम r मिनिमम, ऐसे बीटा क्या है, मैक्स वैल्यू ऑफ x है, तो r इक्वल टू मैक्सिमम n है, r मैक्सिमम n करो तो b आएगा, आ रहा है ना, n बाई n कैंसिल और a प्लस बी माइनस ए बी हो जाएगा, तो बीटा की जगह b आ जाएगा और अल्फा की जगह a आ जाएगा। r मिनिमम 0 करोगे, है ना, r की वैल्यू मिनिमम क्या रखोगे, 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a 1 to n के बजाय, तो ये आ गया तुम्हारा, ये जो लिमिट की वैल्यू है a टू b एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये चारों स्टेप्स समझ में आ गए कि नहीं? और जैसे ही आपने ये 4 स्टेप्स तो एब्सोल्युटली क्लियर है। स्टेप 1 में लिमिट को हमने एक्सप्रेस कर दिया, 2 में अब एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम फंक्शन एफ एक्स के टोटल डोमेन को यूनिट, मतलब टोटल डोमेन का हर यूनिट इंटरवल को, यूनिट विड्थ के इंटरवल को n सब इंटरवल्स में अगर डिवाइड करें, तो इंटरवल अल्फा टू बीटा जो है वो मान लो सपोज लो स्टार्ट हो रहा है pnth स्ट्राइप से और एंड कर रहा है qnth स्ट्राइप पर, ठीक है, तो अल्फा इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू pnth स्ट्राइप, pn इज अ फंक्शन ऑफ n, n इज अ नेचुरल नंबर, जैसे pn कैन बी 100, 1000 ऐसा कुछ भी, एंड qn कैन बी 10,000, 20,000 ऐसा कुछ भी। तो pnth स्ट्राइप से स्टार्ट हो रहा, qnth स्ट्राइप पर मान लो इंटरवल एंड कर रहा है कोई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो, अब एल्गोरिदम थोड़ा चेंज हो जाएगा, देन द एल्गोरिदम विल बिकम, पहला स्टेप क्या होगा, एक्सप्रेस द फंक्शन gn इन टर्म्स ऑफ इनफिनाइट समेशन यूजिंग सिग्मा नोटेशन, और वो हो जाएगा gn इज फंक्शन ऑफ r बाई n इंटू 1 बाई n, क्योंकि एक यूनिट के n पार्ट किया तो सब इंटरवल की विड्थ हो गई 1 बाई n, और मान लो rth टाइप से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तो उसके पहले r x की वैल्यू rth टाइप से काउंट हो रही है ना। तो आप क्या करेंगे, r की वैल्यू जैसे मान ए प्लस आर बी माइनस ए बाई एन यही थी ना बेसिकली, तो a को अब 0 पुट कर दो और b को 1 पुट कर दो, क्योंकि एक यूनिट विड्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो x क्या हुआ, 0 प्लस आर बाई एन हुआ, तो x की वैल्यू एक्चुअली r बाई एन हो गई, ठीक है। और r हमारा कहां से कहां तक वेरी करेगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। डेल्टा x क्या हुआ, 1 बाई एन हो गया, ये भी क्लियर है। तो x की वैल्यू r बाई एन कैसे हुई, डेल्टा x की वैल्यू 1 बाई एन कैसे हुई, दैट्स क्लियर। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, r बाई एन को हम x से रिप्लेस कर रहे हैं, 1 बाई एन को dx से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 3 में क्या हो गया, अब हम लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, और इंटीग्रल अल्फा टू बीटा हो, बेसिकली मान लो लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट बीटा है, और r जो है मिनिमम pn से मैक्सिमम qn तक रिप्लेस वेरी कर रहा है, तो लिमिट को हम इंटीग्रल से कन्वर्ट कर देंगे
और लोअर लिमिट बीटा के लिए हम आर के, अपर लिमिट बीटा के लिए हम आर बाई एन की मैक्स वैल्यू, एक्स की मैक्स वैल्यू चाहिए, तो आर की मैक्स वैल्यू चाहिए, तो आर मैक्स क्या है, क्यू एन, है ना। तो क्यू एन अपॉन एन कैलकुलेट करेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। ऐसे ही लोअर लिमिट के लिए आर मिनिमम बाई एन, दैट इज पी एन बाई एन रिप्लेस करेंगे अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आर मैक्सिमम से बीटा, आर मिनिमम से अल्फा मिलेगा। एंड स्टेप 4 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एंड लास्टली अब हम लिमिट अगर निकालते हैं फंक्शन आर बाई एन 1 बाई एन एज अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स, आर वेरीज पी एन टू क्यू एन। ओके, सो डेफिनेटली हम किसी भी लिमिट को इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन है टू इवेलुएट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus 1 upon n plus 3 so on 1 upon, say we are taking up to 9n, 9 times n। अब 9 टाइम n है, उसको हम क्या लिखेंगे, तो n plus what, n plus 8n लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, तो इसको हम सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिग्मा नोटेशन में लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी, लिमिट n approaching to infinity summation 1 upon n plus r। now r की वैल्यू देखो तो 1 से स्टार्ट हो रही है, दिस इज वेरी क्लियर। लास्ट 9n को लिखेंगे तो 8n पर एंड कर रही है। r वेरीज 1 to 8n। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप r बाई n क्या बोल रहे हैं, समेशन को r बाई एन और 1 बाई एन का फंक्शन के फॉर्म में लिखो, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी समेशन r डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो और बाहर निकालो n कॉमन ले लो, तो 1 प्लस आर बाई एन हो गया और 1 बाई एन फैक्टर सेपरेट हो गया, r वेरीज 1 to n। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। एक्सप्रेस द फंक्शन gn इन टर्म्स ऑफ एफ आर बाई एन 1 बाई एन समेशन r वेरीज 1 to n। तो अब आ गया क्या, r बाई एन को x लिख देंगे एज पर दी स्टेप 2, 1 बाई एन को dx लिख देंगे। नाउ कम्स टू द लिमिट, हाउ टू डिटरमिन लिमिट, अल्फा टू बीटा अगर लिमिट है तो लोअर लिमिट अल्फा कैसे आएगी, तो अल्फा क्या होगा, तो r की मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो 1 बाई n व्हेन n अप्रोचेज इंफिनिटी, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी। यहां से हमें 0 मिल गया। ऐसे बीटा कैसे मिलेगा, तो बीटा मिलेगा r की मैक्सिमम वैल्यू से, r की मैक्सिमम वैल्यू से बीटा मिल जाएगा व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो हमारा आंसर आ गया क्या, बीटा की वैल्यू 8 आ गई, तो 0 to 8 1 upon 1 plus x dx को इंटीग्रेट किया तो क्या आया, 0 to 8 log 9 माइनस log 1, log 1 is 0, तो आंसर आ गया log of 9। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी इवेलुएट लिमिट ऑफ इनफिनाइट सम विद द हेल्प ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये बेसिकली ओरिजिनल जो आपका डेरिवेशन था उसी डेरिवेशन से ये कंक्लूड किया हमने। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने दिख रहा है, इसका ए पार्ट अगर आपको करना है तो बिल्कुल सिमिलर है जैसा भी क्वेश्चन आपने किया था, एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट। तो वर्कआउट करो इसको, तो कैसे करेंगे, इट इज इक्वल टू लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी समेशन के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन n प्लस r, जिसको n को कॉमन ले लेंगे अगर, तो 1 प्लस r बाई n लिख सकते हैं इंटू 1 बाई n। r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है लेकिन एंड कहां कर रही है, n प्लस 35n, तो 35n पर फिनिश हो रही है।
अब r बाई एन को x, सिंबल चेंज, r बाई एन को x, 1 बाई एन को dx, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स आ गया, 1 बाई एन 0, 35 बाई एन करेंगे तो 35, तो अपर लिमिट 35 आ जाएगी, और log 1 प्लस एक्स, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स इवेल्युएटेड 0 to 35 करेंगे तो log 36 या 2 log 6 आ जाएगा, है ना, log ऑफ 36, जिसको आप 6 स्क्वायर लिख करके 2 log 6 भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से आप बी पार्ट भी कर सकते हैं। अब बी पार्ट को ऑब्जर्व करो, पहले आपको एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है। एक्सप्रेशन लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम के फॉर्म में होना चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में होना चाहिए, एन का फंक्शन होना चाहिए, नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, जैसे इस केस में तो है, 1 बाई एन भी दिख रहा है और r बाई एन भी दिख रहा है, 1 बाई एन, 2 बाई एन, 3 बाई एन एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम समेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा 1 बाई एन टाइम्स सीकेंट ऑफ r बाई एन इंटू पाई बाई 4, दिख रहा है ना, 1 बाई एन, 2 बाई एन को पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो पाई बाई 4 टाइम्स r बाई एन इंटू 1 बाई एन, r वेरीज, अब देखो r की मैक्स वैल्यू क्लियर दिख रही है, 1 बाई एन, 2 बाई एन कैरीज अप टू n बाई एन, तो r 1 से n वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ बिल्कुल क्लियर फंक्शन भी दिख रहा है, r बाई एन का फंक्शन है, तो फंक्शन f क्या है, सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4x, लोअर लिमिट 1 बाई एन की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, 0, अपर लिमिट n अपॉन n अप्रोचेज इंफिनिटी पर क्या हो जाएगा, 1, तो लोअर लिमिट 0 to 1, सीकेंड स्क्वायर 1 बाई एन डी एक्स हो गया, r बाई एन एक्स हो गया, तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4x का क्या आएगा, tan, और पाई बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बाई पाई, या स्ट्रेचिंग करके भी कर सकते हैं ना, सीकेंड स्क्वायर 4 बाई पाई 0 to पाई 4 सीकेंड स्क्वायर dx, तो आ गया 4 बाई पाई tan पाई बाई 4, मतलब tan x को इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग 0 to पाई बाई 4 में, तो tan पाई 4 पर 1, tan 0 0, तो इट इज 4 बाई पाई द आंसर। तो इनफाइनाइट सम की लिमिट अगर कभी भी आपको निकालनी है तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू गो। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस करने के बाद में हमारे पास में कुछ एक एग्जांपल्स कैरी आउट कर लिया, लेट्स टेक आउट फ्यू मोर एग्जांपल्स। बोला गया कि इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। अब फर्स्ट एग्जांपल को देखो, तो ऑलरेडी ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड है, फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है, लोअर लिमिट भी दिख रही है, अपर लिमिट भी दिख रही है, तो आप इसको स्ट्रेट अवे इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या करना होगा आपको, n को कॉमन लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा सिग्मा लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो कैसा आएगा, n डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे, n क्यूब बाहर जाएगा, n क्यूब और n स्क्वायर बाई n क्यूब से 1 बाई n मिल जाएगा, तो 1 बाई n तो क्लियर है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3
प्लस r बाई n होल क्यूब। r की वैल्यू क्लियर है 1 से लेके 3n दी हुई है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, फाइंड नहीं करना। और फिर एग्जैक्टली आप लोअर लिमिट 1 बाई एन 0, अपर लिमिट 3n अपॉन n करके 3 आएगी, और 1 बाई एन डी एक्स हो जाएगा, r बाई एन एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस एक्स का होल क्यूब डी एक्स हो गया, है ना। अब ये इंटीग्रल को इवेलुएट कर लिया तो आराम से आंसर आ जाएगा 3 प्लस एक्स की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 इवेलुएटेड अंडर द लिमिट 0 to 3। तो ये क्लियरली आपको -12 मिलेगा। -12 बाहर लो तो क्या आया, -2 पर वैल्यू क्या आएगी 1, थ्री पर वैल्यू आ गई 36, तो 1/36 -4/36, तो आ गया -12 टाइम्स -3/36 एंड सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1/24। तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखो और सी पार्ट देखो। बी पार्ट में जो लिमिट है वो क्या समेशन के फॉर्म में है? सी पार्ट में तो समेशन के फॉर्म में है, दिख रहा है ना। बट बी पार्ट में लिमिट समेशन के फॉर्म में नहीं है, रादर प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर हम सी पार्ट करना चाहते हैं तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि समेशन के फॉर्म में है। अगर आप पैटर्न को देखो तो क्लियर दिख रहा है कि r बाई एन का फंक्शन बनाया जा सकता है। सिग्मा न्यूमरेटर इज r स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस n क्यूब, और r वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, r वेरी कर रहा है 1 से n। देख लो 1/2n तभी आएगा ना जब n क्यूब प्लस n क्यूब 2n क्यूब हो जाएगा, तो n स्क्वायर अपॉन 2n क्यूब, तो 1 से n वेरी कर रहा है। अब ऐसे को अब फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ। अब ऑफ को क्या लिखोगे, तो n क्यूब डिनोमिनेटर से कॉमन लो, तो r n स्क्वायर सेंड कर दिया न्यूमरेटर में, तो r बाई एन प्लस r बाई एन का क्यूब प्लस 1 और 1 बाई एन आ गया। क्लियर है यहां तक? अब फॉलो दी एल्गोरिथम। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप होता है 1 बाई एन को x लिखना, r बाई एन को x और 1 बाई एन को dx लिखना। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, क्लियर है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अगर हम, तो ये डेरिवेटिव क्रिएट कर लिया, तो ये आ गया तुम्हारा 1/3 ऑफ क्या, log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 to 1। वैल्यू क्या आई, 1 पर log 2 और 0 पर log 1, दैट इज 0, तो 1/3 ln 2 इज द फाइनल आंसर फॉर सी पार्ट। तो सी पार्ट समझ में आ रहा है, आ गया। ए पार्ट क्लियर हो गया, सी पार्ट क्लियर हो गया। अब जरा बी पार्ट पे देखो। बी पार्ट में सिचुएशन स्लाइटली डिफरेंट है। बी पार्ट में सिचुएशन स्लाइटली डिफरेंट है, मतलब क्या डिफरेंट है, तो फंडामेंटल डिफरेंस है कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हमने बोला कि मान लो ये लिमिट एल है, तो एल लिमिट एन गोइंग टू इंफिनिटी फैक्टोरियल एन टू द पावर 1 बाई एन अपॉन एन है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4 अप टू एन, 1 से एन का प्रोडक्ट है। तो हमने लॉग लिया जस्ट टू ब्रेक द प्रोडक्ट इनटू सम। लॉग को लिमिट के अंदर कैरी कर सकते हैं क्योंकि लॉग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आएगा तुम्हारा 1 बाई एन, 1 बाई एन तो बाहर ही आ जाएगा, लॉग
of product of first n natural number, that is n factorial, अपॉन n. तो अपॉन n को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं तो वही हो जाएगा ना, n की पावर 1 by n. यस. तो फाइनली जो ब्रैकेट के अंदर लॉग का आर्ग्यूमेंट है, इनपुट, उसको देखो क्या है. ये log of 1 by n प्लस रादर log 1 by n, 2 by n, 3 by n अप टू n by n लिखा जा सकता है. और फिर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लॉग की लगाओ तो log of product is log of product of number is summation of their logs. तो log 1 by n plus log 2 by n plus log 3 by n, isn't it? तो ये क्वांटिटीज पर log का प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी से हम लिखेंगे तो लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n टाइम्स सिग्मा log r by n, where r varies 1 से n, 1 to n. तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और इट एंड्स एट n. अब हमारा समेशन के फॉर्म में आ गया एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन आ गया सम के फॉर्म में. log x 1 by n is dx, lower limit is 0, upper limit is 1, lower limit is 0 and upper limit is 1. क्लियर है? अब इसका इंटीग्रल तो आप जानते ही हो. आप log x को टी पुट करके भी कर सकते हैं और बाय पार्ट से भी कर सकते हैं. x ln x माइनस इंटीग्रल 1 dx इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 to 1. अब 1 पर तो वैल्यू क्लियर दिख रही है, -1. 1 पर वैल्यू क्लियरली दिख रही -1 और 0 पर फर्स्ट टर्म को लिमिट के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा. देखो, इन ऑर्डर प्रूव दैट दिस वैल्यू इज log of x की पावर x, x टेंडिंग टू 0. तो x की पावर x की लिमिट अगर लेते हो तो क्या आएगी? 1, और 1 का log क्या होता है? 0. तो फर्स्ट टर्म की लिमिट 0 आएगी, सेकेंड टर्म तो 0 ही है. तो L की वैल्यू आ गई